बेटा ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं बेटा होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਓਨਲੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ 3 ਰੂਲਸ ਕਰਵਾਏ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਫੋਰਥ ਰੂਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, f dx dy z ਇਕੁਅਲ ਟੂ g ਇੰਟੂ ਅਲਫਾ x ਪਲਸ ਬੀਟਾ y। g alpha x plus beta y can be form of this e ਦੀ ਪਾਵਰ alpha x plus beta y। ਸਿਗੋ ਸਰ ਦਾ ਰੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। sin alpha plus alpha x plus beta y cos alpha x plus beta y। ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਔਰ log ਇਹ ਨਿਊ ਆ ਗਏ log alpha x plus beta y alpha x plus beta y ਦੀ ਪਾਵਰ n is any real ਬੇਟਾ। ਉਹ ਰੂਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੂਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ f dx dy ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰੂਲ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਵੀ f dx dy ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ dx ਐਂਡ dy ਵਿਦ ਆਰਡਰ 2 ਆਰਡਰ 3 ਆਰਡਰ n ਸਭ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 2 ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੀਗਰਲ 1 upon f alpha beta अपने की प्रूव करना है बेटा। पार्टिकुलर इंटीग्रल इस ਦੇ ਵਿੱਚ 1 upon j ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਿकुलर इंटीग्रल ਕੀ ਬਣੇਗਾ f alpha beta ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ g u du du ਡਬਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਬੇਟਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ u ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ alpha x plus beta y, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ f alpha beta not equal to 0। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂ ਜੇ f alpha beta 0 ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਮੈंने ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਲੈਟ f dx dy ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ d ਸਕੁਅਰ x a dx dy b d ਸਕੁਅਰ y। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ dx g alpha x plus beta y डेरिवेटिव कर लिया बेटा विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अल्फा g डैश अल्फा x प्लस बीटा y d स्क्वायर x g अल्फा x प्लस बीटा y अल्फा स्क्वायर g डबल डेरिवेटिव अल्फा x प्लस बीटा y। सिमिलरली बेटा d स्क्वायर x कर लेना। सिमिलरली मैंने की कैलकुलेट कर लिया बेटा d स्क्वायर y g अल्फा x प्लस बीटा y। नेचुरली ये बीटा आएगा बेटा बीटा स्क्वायर g डबल डैश अल्फा x प्लस बीटा y एंड dx dy g। पहला बेटा किस ना करांगे y नाल पार्शियल डेरिवेटिव, फिर x नाल की बन जाएगा बेटा उरे अल्फा बीटा g डबल डैश अल्फा x प्लस बीटा y। ओके बेटा। सो f dx dy बेटा रख के ज़्यादा फंक्शन की रखा बेटा आप जी अल्फा एक्स प्लस बीटा। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈंने d ਸਕੁਅਰ x a dx dy plus b d ਸਕੁਅਰ y g अल्फा x plus बीटा y। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟਾ। ਮੈंने ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਸਕੁਅਰ g ਡਬਲ ਡੈਸ਼ अल्फा x plus बीटा y बेटा ए अल्फा बीटा जी डबल डैश अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बी बीटा स्क्वायर जी डबल डैश अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। सो मेरे लिए कितना आ गया अल्फा स्क्वायर ए अल्फा बीटा बी बीटा स्क्वायर जी डबल डेरिवेटिव अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। प्लीज ध्यान ना देखो बेटा उरे उरे डी स्क्वायर एक्स उरे अल्फा स्क्वायर d स्क्वायर y बीटा स्क्वायर dx dy अल्फा बीटा मींस मैं ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ f अल्फा बीटा। बेटा मैं सारे ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਉਸ ਚ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋ मैंने ऑपरेटर 1 upon d f dx dy ना बोथ साइड डिवाइड करता है। कितना आ गया बेटा मेरे लिए g अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल टू f अल्फा बीटा 1 upon f dx dy g डबल डेरिवेटिव अल्फा x प्लस बीटा y। सो मेरे लिए कितना आ गया बेटा, पहले लिख रहे हैं 1 upon f
dx dy g डबल डेरिवेटिव अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल टू 1 upon f अल्फा बीटा g। बेटा एक गल ध्यान रखियो, f अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू g। फिर अपना प्रूव करना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ बेटा u टेक अल्फा x प्लस बीटा y ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ बेटा u। सो 1 upon f dx dy g डबल डेरिवेटिव u इक्वल टू 1 upon f अल्फा बीटा g u। बेटा डबल डेरिवेटिव क्या है, जे मैं दो बार इंटीग्रेशन करदा विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रेट 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू u, तो मेरे लिए की आ जाएगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू u दो बार इंटीग्रेशन किया, एंटी डेरिवेटिव कैंसिल बेटा डेरिवेटिव। सो की आ गया मेरे लिए f dx dy gu इक्वल टू 1 upon f अल्फा बीटा डबल इंटीग्रेशन gu du du। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल किदे इक्वल आ गया बेटा 1 upon f अल्फा बीटा डबल इंटीग्रेशन gu du du। ये तो मैंने डिग्री 2 रखी सी बेटा। लेट jf dx dy homogeneous function of homogeneous function of dx and dy with the order n। जे मैं n ऑर्डर दी रखता तो की बनेगा पुत्तों, ध्यान ना समझना बेटा। कितनी आएगी बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 upon f अल्फा बीटा ओके डबल इंटीग्रेशन gu सॉरी डबल नहीं बेटा n टाइम्स इंटीग्रेशन। क्यों, जो मैं सेकंड डिग्री रखी तो 2 बार इंटीग्रेशन आया, जो n डिग्री रखूंगा कितने बार आएगा बेटा n टाइम्स du du du। ये n टाइम्स है बेटा, क्यों जो n टाइम्स आएगा तो 3 टाइम्स 3 रखें 4 टाइम्स 4 इस तरीके। एक कंडीशन की सी बेटा इस f अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू g। हुण अपने रखांगे केस फिर मान लो ये रूल की आया था f अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आ गया, तो ये रूल की हो गया बेटा फिर तो इसको किवें सोल्व करांगे, ये मैं तुहानू करवाउण लगा। देखो बेटा रूल जे फेल हो जाता है f अल्फा बीटा जे 0 आ गया तो रूल फेल हो गया उत्ते, तो नेचुरली बेटा अपने बीटा dx माइनस अल्फा dy फैक्टर आ गया है एक। क्यों, क्योंकि ये पुत्ते फैक्टर बनेगा, याद करो आप dx जगह ते अल्फा कितना सी dy जगह ते बीटा कितना सी। चलो पुट करांगे अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, जे फैक्टर होगा ताही बेटा अपना f अल्फा बीटा 0 बनूगा। जे फैक्टर ना बनया उत्ते इसका फैक्टर ना होया मान लो f dx dy तो फिर तो 0 नहीं बनना। सो क्लियर है, जो dx को आप अल्फा पुट करांगे dy नु बीटा इस तरह एक फैक्टर बनेगा ही बनेगा उत्ते। सो अपने रख लिया पर्टिकुलर इंटीग्रल की बन गया पुत्र 1 अपॉन बीटा dx माइनस मान लो एक फैक्टर आया, एक ही फैक्टर रखा है तो बाकी मैं एज इट रख लिया f dx dy मान जो इस ऑर्डर होएगा वो n-1 होएगा जे आप n ऑर्डर दी होमोजेनियस इक्वेशन देखते हैं। देन उरे क्या आ गया g अल्फा x प्लस बीटा। सो 1 अपॉन f dx dy बीटा dx माइनस अल्फा dy। ठीक है पुत्र, अब पहले मान लो इसको सॉल्व कर लिया मैंने पहला इसको जिदा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा। मान लो इसकी वैल्यू बेटा अपने कुछ भी सॉल्व कर ली 1 अपॉन बीटा dx को f dx dy ठीक है बीटा dx माइनस अल्फा dy g अल्फा x प्लस बीटा। पहला पुत्ते नु सॉल्व कर ओके किस तरह बेटा लेट 1 अपॉन बीटा dx अल्फा dy इनटू g अल्फा x प्लस बीटा y अज्यूम कर लो u देखो कुछ भी रख लो बेटा t u कुछ भी रख लो कोई मैटर नहीं करता। सो g अल्फा x प्लस बीटा y बीटा dx माइनस अल्फा dy u।
सो मेरे लिए कितना बन गया बेटा बीटा कर डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस अल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई जी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। इन्हों लैंग्वेज लीनियर इक्वेशन कंपेयर कर लो बेटा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। सो पी की वैल्यू बीटा क्यू की वैल्यू माइनस अल्फा आर की वैल्यू कितनी आ गई जी अल्फा एक्स प्लस बीटा। क्लियर बेटा। सो फिर अपनी रिजर्व इक्वेशन की सी लैंग्वेज डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन सॉरी डी यू आएगा बेटा उत्थे की सी जेड पूरे की है बेटा ये अपॉन जी अल्फा एक्स प्लस बीटा। टेक फर्स्ट टू कितना बन गया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू सी वन। ओके बेटा फर्स्ट लास्ट डी एक्स अपॉन बीटा डी यू अपॉन जी इसकी वैल्यू पुट करती बेटा सी वन। सो जी सी वन देखो बेटा एक्स इंटीग्रेशन करता बीटा यू। सो यू की इक्वल आ गया वन एक्स अपॉन बीटा जी सी वन की वैल्यू कितनी है बेटा मिल रही है। सो इन्हें कितने पुट करता बेटा पुट इन वन क्योंकि इहदी वैल्यू मैं की रख ली सी बेटा यू। सो कितना आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन एक्स अपॉन बीटा जी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अपॉन एफ डी एक्स डी वाई। सो जिहड़े फैक्टर च रूल फेल हो रहा सी वो अपने सोल्व करता। सोल्व करन तो जिहड़ा बाकी आ रह गया बेटा बैलेंस रह गया जिहड़ा इहदा ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਏ 4 रूल कीते ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ रूल लगता बेटा वो अप्लाई कर दो। ओके बेटा मैं अज्यूम कर लूं भी और एक फैक्टर सी 2 फैक्टर आ गए 3 फैक्टर आ गए आर फैक्टर आ गए लेट ये कितने फैक्टर है बेटा आर फैक्टर है बीटा dx माइनस अल्फा dy कितने फैक्टर है आर। तब तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना बन जाएगा बेटा x दी आर बीटा दी पावर आर फैक्टोरियल जी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अपॉन जी डी एक्स डी वाई। इसके ऊपर कोई अपने रूल पढ़े हैं बेटा वो लग जाएगी। हुण मैं एग्जांपल करन लग्या बेटा एग्जांपल फर्स्ट देखो बेटा एग्जांपल फर्स्ट फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 d square x minus 4 dx dy plus d square yz equal to 16 log x plus 2y। बेटा आपको पता है आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं पहला आप की करते हैं बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के कंप्लीमेंट्री फैक्टर फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फैक्टर कढन लई बेटा आप की करते हैं dx dy plus d square y equal to g d square y ਨਾਲ डिवाइड करके dx dy ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਦੇ हैं लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर minus 4 लैम्डा plus 1 equal to 0 2 लैम्डा minus 1 ਦਾ होल स्क्वायर 0। सो लैम्डे की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 1/2। क्लियर है बेटा। सो कंप्लीमेंट्री फैक्टर किधर इक्वल बन गया x 5 1 y minus 1/2x plus 5 2 y plus 1/2x। सो ये की आ गया पुत्र मेरे लवे कंप्लीमेंट्री फैक्टर। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल किस मैथड नाल कैलकुलेट करना है बेटा 1 अपॉन 4 d square x minus 4 dx dy plus d square y 16 log x plus 2। बेटा कितना आ गया देखो नीचे 2 dx minus dy the whole square log x plus 2। फिर बेटा देखो रे अल्फा कितना है कंपेयर करो बेटा dx की वैल्यू अल्फा dx प्लस बीटा dy। बेटा dx ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਲਫਾ ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 dy ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੀਟਾ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰ dx 1 dy 2 ਰੂਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰ ਇਹ ਕੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 0 ਵਾਰੀ ਹੈ। बेटा इस तरह देखो मैं क्या सी उरे समझो पुत्र जे रूल फेल है जिवें उरे पावर r सी उरे पावर कितनी है बेटा 2। क्लियर है पॉइंट। सो मैं एक सो होर चीज दसी सी पुत्र उरे भी इस तरह फैक्टर बनूंगा देखो बाहर लेना बेटा।
सो उरे फैक्टर की पावर 2 1 कितने मर्जी हो सकती है, सो पावर 2 आ गई। सो की लिखांगे बेटा 16 इंटू एक्स स्केयर। ओके उरे अल्फा कितना बेटा 1, बीटा कितना 2, मैं की लिखा सी बीटा की पावर आ 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल लॉग एक्स प्लस 2 पर। सो कितना बन गया पुत्ते 8 कैंसिल हो गया 2 एक्स स्केयर लॉग एक्स प्लस 2 पर। सो जनरल सॉल्यूशन किहदे इक्वल आ गया बेटा कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। सो दोनों रे की कर देंगे प्लस की आ जाएगा बेटा प्लस जनरल सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल बेटा देखो बेटा एग्जांपल सेकंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस। ठीक है बेटा विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। पहले हम ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ बेटा सिंबॉलिक फॉर्म -3 dx dy plus 2 d square y z equal to e the power 2x minus y plus e the x plus y minus cos x plus 2y। क्लियर है बेटा पॉइंट। सो पहला कंप्लीमेंट्री फैक्टर कट ਲਈ बेटा ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ऑक्सिलरी इक्वेशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ बेटा ਆਪਾਂ d square y ਨਾਲ डिवाइड करके dx dy ਨੂੰ लैम्डा सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ये फैक्टर ना है बेटा मैंने लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 सो लैम्डा की वैल्यू 1 ते 2 आ गई। सो कंप्लीमेंट्री फैक्टर किदे इक्वल आ गया पुੱਤ मेरे लगे 5 1 y प्लस x 5 2 y प्लस 2x। तो बेटा अपने की फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन d स्क्वायर x माइनस 3 dx dy प्लस 2 d स्क्वायर y सेपरेट टर्म दे नाल लिख लिया बेटा प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर x 3 dx dy प्लस 2 d स्क्वायर y e दी पावर x प्लस y प्लस 1 अपॉन f सॉरी d square x minus 3 dx dy plus 2 d square y cos x plus 2। सो मैंने ये लिखा पहले इसमें सॉल्व करने के चेक करो बेटा पूरे अल्फे की वैल्यू कितनी है 2 बीटे की कितनी है बेटा माइनस पुट करिए पुट हो रहा 4 माइनस 6 प्लस 2 सॉरी पूरे आना सी बेटा 4 माइनस dy माइनस 1 है प्लस 6 प्लस 2 ओके जीरो नहीं पा रहा है बेटा। सो रूल बेटा फेल ही हो रहा है और सुन लो मैथड है बेटा चाहे रूल मेरा थोड़ा मैं उसको कराया सैकेंड लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिंक दूंगा ना वो लगाना है वो लगा दो बेटा जो भी बेटा जो मैं रूल कराया फोर्थ वो अप्लाई करना है। देखो मैं दोनों मैथड करवा देना बेटा पहला रूल सैकेंड नाल कर रहे हैं बेटा dx ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 2 dy ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ -1 ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਫਸਟ ਦੀ 1 upon d square x minus 3 dx dy plus 2 d square y e की पावर 2x minus y 1 upon 4 plus 6 plus 2। सो बेटा ये आ गया कितना बन गया 12 e की पावर 2x minus y। एक मैथड हो गया ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ x plus बीटा y ਸੀ e ਦੀ ਸੌਰੀ 2x minus y ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ u। ਸੋ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ 1 upon f alpha beta 1 upon 12 डबल इंटीग्रेशन क्यों किया है क्योंकि उरे ऑर्डर कितना है बेटा 2 e ਦੀ ਪਾਵਰ u du du सुन पता एक बार इंटीग्रेशन करा e du ਦਾ e du दोबारा फिर इंटीग्रेशन करांगे e du ਦਾ e du। सो चाहे बेटा ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਲ 4 ਆ ਗਿਆ ठीक है। ਇਹ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ बेटा 4।
सो ये ना सोचियो बेटा भी किस मैथड ना छोटी अपनी चॉइस है बेटा किहड़ा मर्जी मैथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये पार्ट हो गया हुण बेटा इस दी टर्म ए च dx नु की पुट करांगे 1 dy नु की पुट करांगे 1 अल्फा 1 बीटा 1 सो रे कितना आ गया बेटा d स्क्वायर x 1 - 3 + 2 बेटा रूल की हो रहा है उरे फेल हो रहा है जे रूल फेल हो रहा है बेटा इहदे पहला फैक्टर बना लो 1 upon d स्क्वायर x minus 3 dx dy plus 2 d square y e ਦੀ ਪਾਵਰ x plus y ਸੋ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਬੇਟਾ dx minus dy dx minus 2 dy चेक कर लो बेटा d square x minus 2 dx dy plus 2 d square y e ਦੀ ਪਾਵਰ x plus y बेटा पहला इसनु सॉल्व कर लो dx minus 2 dy अपना रूल की सी पुत्र जेनु सॉल्व करना बेटा इसनु कर सकते हो क्यों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਰੱਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ dx ਨੂੰ 1 dy ਨੂੰ 1 1 minus 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ -1 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੂਰੇ ਰੂਲ ਸੈਕੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੂਲ 4 ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ -1 upon dx minus dy ਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ x plus y ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮੈਥਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 upon ਬੀਟਾ ਬੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 1 into e ਦੀ ਪਾਵਰ x plus y minus ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੁਣ ਥਰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ 1 upon d square x minus 3 dx dy plus 2 d square y cos x plus 2 पूरे को तो योर चॉइस भी सुनने u पुट करके करने जब रूल नंबर बेटा थर्ड भी लग सकता है ये रूल फेल नहीं हो रहा है क्योंकि dx की वैल्यू 1 ते dy की वैल्यू जो 2 पुट करांगे बेटा 1 minus 6 plus 4 सॉरी 4 8 सो रूल फेल नहीं हो रहा है बेटा सो जे रूल फेल नहीं हो रहा है रूल थर्ड भी लग सकता है बेटा फोर्थ भी लग सकता है सो जेड़ा मर्जी अप्लाई कर सकते हो बेटा जे रूल 4 लगाना है मैं रूल थर्ड तो सुनो आंदी है बेटा मैं लास्ट वीडियो दस्या रूल 4 लगा लो पुट x plus 2 y नु u पुट कर लो बेटा पूरे वैल्यू कितनी आ गई इस द पार्टिकुलर इंटीग्रल dx नु 1 dy नु 2 फिर dy 2 पुट इधर 4 8 ओके डबल इंटीग्रेशन cos u du d सो 9 1/3 पहला एक बार इंटीग्रेशन करो cos u का इंटीग्रेशन sin u du फिर sin u का बेटा माइनस cos u दी वैल्यू पुट कर दो बेटा cos x plus 2y सो मेरे लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल किदे इक्वल आ गया बेटा फर्स्ट लिखो कितना सी 1/12 e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x y प्लस सेकंड ਦੀ वैल्यू कितनी आई है -x e ਦੀ x plus y पावर माइनस 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 प्लस हो गया बेटा देखो अगे माइनस है 1/3 cos x plus 2y फिर जनरल सॉल्यूशन किवें कटांगे बेटा कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल सो बेटा इस दे क्वेश्चन ट्राई करियो ते बेटे लास्ट 2 लेक्चर है पहले उन्होंने जरूर देखियो मैं उसका वीडियो सेंड करूंगा ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।